student, how are you? How is going your study? Very well, fantastic, marvelous, बहुत बढ़िया. So today dear student, our topic is relative error. So we already discussed about the absolute error in each measurement and mean absolute error. We have also solved two numericals in last lecture. So move on next. Relative error. Dear student, relative error can be defined as is the ratio of and mean absolute error. Mean absolute error divided by mean value, true value, you can say true value, or you can say mean value. Got the point? In expression we can write del A is equal to delta AM. ठीक है, इसको बार से लिखा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय AM. AM is the true value, mean value. Got the point, dear student? डेल्टा AM का जो एक्सप्रेशन था, I hope you remember that डेल्टा A1 plus delta A2 plus dot delta AN divide by number of. यही था. वेरी गुड. देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, डेल्टा AN. शाबाश. नाउ व्हाट इज द ए मीन आप लोगों को पता है, ये नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस है उनका हम क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे. दैट इज द ट्रू वैल्यू. ओके डियर स्टूडेंट, एंड व्हाट अबाउट द परसेंटेज एरर? इफ वी टॉक अबाउट परसेंटेज एरर, नेक्स्ट वन इज परसेंटेज एरर. ओके, percentage error, what will that say? It can be defined as the relative error into 100, relative into 100. So it will be del percentage, you can say. What is the relative? Sir, here del into 100, and you can write delta AM, mean absolute error divided by true value or mean value, isn't it? Multiply by 100. It will give you percentage error. So ready रहें, we are going to solve a numerical. Yes, like करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें. Yes magic. स्टूडेंट, वी हैव ए क्वेश्चन. इसका उस पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया था लास्ट लेक्चर में. डायमीटर ऑफ ए वायर मेजर्ड बाय ए स्क्रू गॉज गिवन एज 2.620 सेंटीमीटर, 2.630 सेंटीमीटर, 2.628 सेंटीमीटर एंड 2.626 सेंटीमीटर. लास्ट वन इज 2.625 सेंटीमीटर. देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन. फाइंड करना आपको फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर. So dear student, what is the formula of fractional error? Fractional error also known as relative error, you know, it is also known as relative error. Okay, got the point? Very good. Acha, dear student, tell me what is the formula of relative error? Sir, we know that delta A is equal to delta diameter निकालना है तो mean absolute of diameter and mean value of diameters. याद है, mean absolute error of the diameters, और यहाँ आ जाएगा mean value और you can say true value. So we need this one and this one. So आइए, first of all we have to find DM. So dear student, can you tell me what is the DM? I'm solving here. Okay, I'm solving here. So what is the DM? It will be D1 plus D2 plus D3 plus D4 plus D5 divided by 5. Am I right? यही होगा आंसर, बिल्कुल यही होगा. यस, वैल्यू पुट कर दें. 2.620 ये डायमीटर मेजर किया, प्लस 2.630 प्लस 2.628 प्लस 2.626 एंड लास्ट वन 2.625 डिवाइड बाई 5. Yes, dear student, when you solve it, you will find it will be 2.6258
centimeter. When you solve it, you will find 2.6258 centimeter. Okay, now dear student, but our जो मेजर डाटा आर इन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 1 2 3 4, सब में देख लीजिए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आपको गिवन है. सो अपना जो ये रिजल्ट आ रहा है, मेन आ रहा है, ट्रू वैल्यू आ रहा है आपका, ये इट शुड बी इन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट. सो राउंड ऑफ दिस सर ग्रेटर देन है, जो आपका टर्मिनेटिंग डिजिट है ना, वो 8 है, 5 से ज़्यादा है, तो आप क्या लिख सकते हैं 2.626 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ द योर ट्रू वैल्यू. नाउ व्हाट इज़ द मीन एब्सोल्यूट वैल्यू? उसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट के लिए? सर इसके लिए हमें इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी पड़ेगी पहले, और फिर उनका मीन लेना पड़ेगा. सो फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन ईच, एब्सोल्यूट एरर in each reading, yes. क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? वो सर आप बोलेंगे उसको डेल्टा A1, वो डेल्टा A1 बोलते थे, यहाँ D1 बोल देते हैं. डेल्टा D1 क्या आ जाएगा? D मीन माइनस D1. ठीक है, कितना आ जाएगा? D मीन कितना है 2.626 माइनस फर्स्ट रीडिंग कितनी है 2.620. फटाफट से बता दो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा? ये पॉजिटिव है 620, यह आ जाएगा 0.006 सेंटीमीटर. एम राइट? यही आना है. वेरी गुड. इफ यू टॉक अबाउट डेल्टा D2, इसको आप क्या लिखेंगे? DM माइनस D2. टेल मी व्हाट इज़ द आंसर ऑफ इट? सर इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से 2.626, तो मीन वैल्यू है, माइनस आप रखेंगे सेकेंड वैल्यू 2.630. एंड व्हाट इज़ दैट फॉर? सर ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है? 0.004 सेंटीमीटर. देख पा रहे हैं 26 और 30. यस. एंड सिमिलरली वी विल फाइंड अदर वैल्यूज, देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट? वहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये हो गया 0.004 सेंटीमीटर. ओके, नाउ विजिबल. अब हम आगे चलते हैं ऐसे ही, और फिर हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे. यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड. यस डियर स्टूडेंट, सो डेल्टा D3 क्या आ जाएगा सर? DM माइनस D3. DM 2.626 माइनस D3. व्हाट इज़ द D3? 2.628. ये से ग्रेटर है कितना है? 0.26 और 28, 0.02 सेंटीमीटर, है ना? वेरी गुड. एंड डेल्टा D4 क्या आ जाएगा सर? DM माइनस. अच्छा ये बताओ नेगेटिव क्यों नहीं लगा रहे सर? नेगेटिव लगाओ ना. कितना ज़्यादा नेगेटिव, यहाँ पे भी आप नेगेटिव साइन नहीं लगाए थे. नेगेटिव साइन ज़रूर लगाइएगा सर, बिकॉज इस नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो नेगेटिव तो पुट करना ही पड़ेगा. तो यहाँ आ जाएगा आपका D4 2.626 माइनस D4 इज़ द 2.626, तो इट विल बी 0.000 सेंटीमीटर. सेम है. यस. डेल्टा D5 की बात करें, लास्ट वन. ठीक है, फटाफट से वैल्यू रखते हैं डियर स्टूडेंट. क्या आ जाएगा सर? D.626, तो मेन वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है. एम आई राइट? यस. सो फ्रॉम हियर यू कैन पुट 2.625. सो व्हाट इज़ दैट? यहाँ से सभी चाहिए मुझे 0.001 सेंटीमीटर. ये आपका आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा. ये एक पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन है. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द मीन एब्सोल्यूट? मीन एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट एरर थी इन इंडिविजुअल. एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, हमने बात कर ली थी. बट मीन एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज वी कंसिडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू. मोड लेने के बाद में डेल्टा D से आप रिप्रेजेंट करें इसको. क्या आ जाएगा सर? मोड ऑफ डेल्टा D1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा D2. ऐसे ही आप कहाँ तक पुट कर देंगे? डेल्टा D5 तक आप इसको पुट कर देंगे. डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5. सो टेल मी डियर स्टूडेंट व्हाट आर द वैल्यूज? फटाफट से वैल्यूज आप बता सकते हैं मेरे को. फर्स्ट वैल्यू कितना है? 0.006. सेकेंड वैल्यू कितना है? माइनस 0.004. प्लस थर्ड वैल्यू कितना है? माइनस है, माइनस 0.002. देख पा रहे हैं बच्चों? आ सकता है एक वैल्यू अभी, और या फिर कहीं, चलो एडजस्ट करते हैं ना, एडजस्ट करते हैं इसको. चलो लिख देते हैं यहाँ पे, ये दो वैल्यू एडजस्ट करते हैं ना.
यस डियर स्टूडेंट, आ जाए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस चीज़ को, ये आ जाएगा डेल्टा डी एम बार। यस डेल्टा डी वन हमने लिखा है 0.006 माइनस वो मतलब माइनस क्यों, क्योंकि मोड लगा रहे हैं, मोड लगा रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, जो माइनस वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी 0.004। अरे भैया ध्यान दिए नहीं दिए, डेल्टा D2 नेगेटिव था लेकिन जैसे ही मोड लगाएंगे आप पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ जी D3 आपके सामने है 0.002, मोड लगाया तो क्या करना पॉजिटिव वैल्यू रख देनी है प्लस, ये 0 है ही, ये आ जाएगा 0.01। डिवाइड करो डियर स्टूडेंट इसको 5 से। अच्छा चलो ठीक है, ऐड करते हैं 6, 10, 12, 13, 0.013 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करते हैं डियर स्टूडेंट क्या मिलेगा आपको, टेल मी सर। 0.056 सेंटीमीटर। ओके, अब नाउ टेल मी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में बताना है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में बताना है तो 0.056 सेंटीमीटर आपके पास में है। ये आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। हमें अब फाइंड करना है रिलेटिव और यू कैन से फ्रैक्शनल। सो रेडी रहे, यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस जी स्टूडेंट, जो अपने मीन एब्सोल्यूट एरर आया था वो आया था 0.013 डिवाइड बाई 5, 0.0055 नहीं, ये डिवाइड करोगे तो 26, 5 2 जा, ठीक है, 5 2 जा 10 एंड 5 6। सो ये आपकी वैल्यू आ गया, बट दिस इज़ नॉट इनसिग्निफिकेंट, हमें डेसिमल पॉइंट 3 तक ही लेना है पीछे से, तो इसको राउंड ऑफ कीजिए। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपको जो वैल्यू है डेल्टा डी मीन वो कितना आ जाएगा, इसकी हम बात करते हैं, ये मीन एब्सोल्यूट ये आ जाएगा सर 0.0026 है वो अप्रॉक्स 0.003 हो जाएगा सेंटीमीटर। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट वैल्यू रखते हैं, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, ध्यान दे डियर स्टूडेंट, मैंने इसको लिखा है 0.003 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे ये बता दें डेल्टा आपके पास में आ गया 0.003 डिवाइड बाई डेल्टा मीन आपके पास में कितना था 2.626 सेंटीमीटर, एंड व्हेन यू डिवाइड इट व्हाट विल यू अप्रोक्स जो मिलेगा आपको 0.001 मिलेगा, क्या मिलेगा 0.0। तो दिस इज द फ्रैक्शनल एरर और यू कैन से रिलेटिव एरर। नाउ वी टॉक अबाउट द परसेंटेज एरर। अब हम इसकी बात करें परसेंटेज एरर की डियर स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर, फटाफट से बता दें सर। परसेंटेज एरर आ जाएगा तो आपका रिलेटिव एरर आया उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 0.01 इंटू 100%। तो व्हाट इज योर आंसर डियर स्टूडेंट, टेल मी सर। ये आंसर आ जाएगा पॉइंट, मार्कर ही बंद हो गया, ये आ जाएगा यहाँ से 0.1 परसेंटाइल, 202 पॉइंट से कैंसिल हो जाएंगे। आई होप गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और ठीक है, हमने बिल्कुल डिटेल से किया। अगर थोड़ा सा भी कहीं वीक पॉइंट रह रहा है तो वापस से रिवाइज करें इसी चीज़ को, वापस से देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेहनत करें जम के। ओके, बी एक्टिव, बी हैप्पी। नेक्स्ट चलते हैं अब अच्छे से जो एक्चुअल आपको वेटिंग करनी है एरर एनालिसिस में, आइए चलते हैं। यस डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा है इसको पढ़ पा रहे हैं। यस, हमेशा याद रखिए एरर ऑलवेज बी एडेड, ऑलवेज बी एडेड। हमेशा गलती ऐड ही की जाती है। आप लाइफ में भी देख लीजिए, मिस्टेक जो आप करते हैं, एरर करते हैं, वो ऐड ही होगी। कोई बोल देता है कि हाँ माफ़ कर दिया, अदर आपको माफ़ कर सकते हैं लेकिन आपका बॉडी, आपका माइंड आपको कभी माफ़ नहीं करता, वो हमेशा आपके माइंड में बना रहता है। याद रखिएगा, जितनी गलती करते जाएंगे वही एडअप होती जाएगी, वही आपका एक्सपीरियंस बनता जाएगा। गो टू पॉइंट 2, एरर ऑलवेज बी एडेड, एरर ऑलवेज बी एडेड। इसी कंसेप्ट को हम अपनी फिलोसफी, अपना कंसेप्ट, फिजिक्स का कंसेप्ट बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए पहले देखते हैं। पहला कहता है कि सर एरर इन absolute error in sum, absolute error in sum। मैक्सिमम परमिशनल एरर की बात करूंगा, डेरिवेशन में नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, बस याद रखिए इस कंसेप्ट को हम यूज करके। यस, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। आपको गिवन है कोई डाटा दैट इज x, आपको कोई गिवन डाटा है x इजिकल टू a प्लस बी।
ठीक है, सम में हम बात कर रहे हैं तो यू आर गिवन x इजिकल टू a प्लस बी आपको गिवन है, x डिपेंड ऑन a एंड b। ओके, a में कोई मिस्टेक एरर आएगा तो x पे भी आएगा, b में कोई एरर अगर होता है तो x में भी होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द एरर इन a, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरर इन b, डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर्स को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर लेके चलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको एब्सोल्यूट एरर से बोल दिया जाता है। मैक्सिमम, ठीक है, तो व्हाट इज द एरर इन x, दैट इज द डेल्टा x। मैंने क्या कहा, एरर ऑलवेज बी एडेड, एरर ऑलवेज बी एडेड, तो इन दोनों का जो एरर होगा वो इसमें एड आएगा। इफ वी टॉक अबाउट न्यूमेरिकल लेंगे, ध्यान दीजिएगा अभी। ठीक है, सेकेंड, ठीक है, मैक्सिमम परमिशिबल एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंस, देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, देख पा रहे हैं, इन डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, यू हैव ए क्वांटिटी x विच डिपेंड्स ऑन a एंड b बाय रिलेशन a माइनस b। ओके, बाय रिलेशन a माइनस b, got the point। if a have individual error delta a, b have individual error delta b, and x has individual error delta x, then what is the total error? So you said error always be added, error always be added, तो it will be, got the point। तो एरर हमेशा क्या होगी, एरर हमेशा ऑलवेज भी क्या होगी, एड होगी। समझ पाए इस चीज़ को? चलो न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। Yes, done? Yes, magic 5. Yes, student. We have a question. There are two lengths L1 is equal to 5.0 plus minus 0.01 centimeter, and another length L2 that is 4.0 plus minus 0.03 centimeter. अच्छा सर, ये प्लस माइनस कैसे लिखा है? ये रिप्रेजेंटेशन का वे है। कोई भी आप एरर लिखना, कोई भी डाटा आप लिखना चाहें, मान लीजिए आप डायमीटर ही लिखना रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। डायमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इसकी ट्रू वैल्यू लिखी होती है, इट मीन्स मेन वैल्यू, एंड यहाँ प्लस माइनस इसका मीन एब्सोल्यूट एरर लिखा जाता है। अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे लिखा होता है, दिस इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ जाइएगा इस चीज़ को, जैसे यहाँ पे लिखा है तो दिस इज़ द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर इन द लेंथ L1। इफ वी टॉक अबाउट दिस, देन दिस इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर 4, ओके, ठीक है, एंड मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड दिस 0.03 इज मीन एब्सोल्यूट एरर। सो फाइंड, आपको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड L1 प्लस L2 एंड L1 माइनस L2। क्या आंसर आएगा बताएं बच्चों, ट्राई करें, आप लोग ट्राई करें, देन आंसर पुट अप करें। ओके, हैव यू ट्राइड? वेरी गुड। चलो मैच करते हैं सर, L1 प्लस L2, तो फटाफट से बता दें L1 प्लस L2 क्या आ जाएगा। मैक्सिमम परमिशन की बात करेंगे सर, ये हो जाएगा 5.0 प्लस माइनस 0.01 प्लस 4.0 प्लस माइनस 0.03। सो 5 प्लस 4 इट विल बी 9.0 प्लस माइनस एरर ऑलवेज बी एडेड, तो 0.01 प्लस 0. तो कितना हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर, 0.04 सेंटीमीटर। गुड द पॉइंट। ओके, चलो ये तो ठीक है सर, ये मीन है, वैल्यूज़ को आपने ऐड कर दिया, एब्सोल्यूट एरर्स को आपको ऐड कर दिया। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट देन व्हाट इज दैट, 0.5 प्लस माइनस 0.01 माइनस 4.0 प्लस माइनस 0.03, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट? ओके, 5 माइनस 4 इट विल बी, 5 माइनस 4 इट विल बी, बताएं बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एम राइट? ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, 1.0, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ क्या आना है, यहाँ क्या आना है, टेल मी। यहाँ आपने लिख दिया, ये आ जाएगा आपका 1.0 प्लस माइनस, यहाँ क्या आना है। अब आप कहोगे कि सिर्फ 0.0 माइनस 0.02 तो माइनस का 0.02, नो, हमने अभी बोला है गलती हमेशा ऐड होती है, एरर ऑलवेज बी एडेड, ठीक है। तो ये वाला एरर, टोटल एरर कितना हो गया 0.04 सेंटीमीटर। सो गॉट द पॉइंट, आंसर ध्यान रहना चाहिए, एरर है, ये एरर है
ये एरर है, इट विल बी ऑलवेज बी एडेड, ठीक है। ये डेल्टा L1 हो गया, ये डेल्टा L2 हो गया, तो नेट जो डेल्टा L आएगा डेट विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 आएगा। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट, बी अटेंटिव, बी फोकस। नेक्स्ट चलते हैं, यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेटिव एरर in which product multiple. Yes, so you are ready? Yes dear student, if we talk about multiple x is equal to a dot b, got the point? Got the point? X is equal to a dot b, this is the multiple of 2 dot है, ये multiple है। so in product and division we calculate relative error, fractional error, okay, relative error and fractional error, that's why I'm writing here relative error. So what is the relative error in A? Sir, you will say delta A upon A, am I right? Absolute error in A and mean value, true value of A, got the point? And what's about the B? Sir, it will be delta B upon B, absolute error in B and mean value of B. And what is the absolute error in X? Delta X and mean value of X, this is the fractional error, and we know that error always be added, error always be added, so this will be positive. Got the point? Am I right? Say yes or no dear student, tell me, say yes or no। अगर आप चाहते हैं इनके डेरिवेशन कराएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अगर आप चाहते हैं इनके डेरिवेशन कराएं तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, है ना सभी के, तो मैं डेरिवेशन भी करा दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ। यस, तो डियर स्टूडेंट डेल्टा एक्स अपॉन एक्स रिलेटिव एरर आ गया, डेल्टा अपॉन ए डेल्टा बी। यहीं से अगर परसेंटेज एरर के लिए बोला जाए, इफ वी टॉक अबाउट द परसेंटेज एरर, सो व्हाट विल यू डू? सर, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, that will be percentage, so you delta a upon a, इंडिविजुअल आप 100 लगा दें या दोनों के एक साथ 100 लगा दीजिएगा, into 100, that will be percentage। got the point? सिंपल है। yes dear student, if we talk about the division, if we talk about division then what will happen? अगर हम डिवीजन की बात कर लें, हाँ स्टूडेंट, क्या होगा इन डिवीजन? डिवीजन में भी हमने बोला कौन सा एरर निकालते हैं? फ्रैक्शनल एरर वी फाइंड, फ्रैक्शनल एरर हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, है ना। तो फ्रैक्शनल एरर हम फाइंड करेंगे, जिससे बोल दीजिए कि x इज इक्वल टू क्या है? a अपॉन b, ओके, x इज इक्वल टू a अपॉन b। सो आई एम सेइंग दैट रिलेटिव एरर इन डेल्टा a अपॉन a, रिलेटिव एरर इन b डेल्टा b अपॉन b, ओके, रिलेटिव एरर इन x डेल्टा x अपॉन x, एरर ऑलवेज बी एडेड, ऐड कर दें, ये इक्वल टू जाएगी, ठीक है। चाहे डिवीजन हो चाहे प्रोडक्ट हो, ठीक है, एरर रिलेटिव एरर फाइंड करें इंडिविजुअल में, ए और बी में, और उनको ऐड करते हैं, यू विल गोट योर आंसर। परसेंटेज एरर की बात करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई 100 लाइक दैट, ओके। सो रेडी। अच्छा, पावर रूल, व्हाट इज़ द पावर रूल? अब पावर्स में देख लें, इम्पोर्टेंट, इन पावर्स में देख लें, इन पावर रूल्स, ठीक है। पावर रूल मीन्स यू हैव ए क्वांटिटी x and there are the two other quantities on which depend x, like that on the power n and m। हो सकता है कोई पावर a की पावर 2, b की पावर 3, then what is the error in this? ये क्या होगा? a में जो पावर होगी एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई मीन वैल्यू, दिस इज़ द रिलेटिव एरर, इसको n से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है सर, अभी n से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इसका क्या आ जाएगा? m डेल्टा b अपॉन b, गॉट द पॉइंट? ये आ गया। जो भी पावर हो उसको आगे मल्टीप्लाई कर देना, जो भी पावर हो उसको उसकी रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर देना। इसमें b में रिलेटिव एरर निकालो, पावर को आगे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है सा, ये आ जाएगा आपका डेल्टा x अपॉन x, ठीक है, और बीच में क्या लगा देना?
प्लस का साइन लगा देना, ऐड का साइन लगा, क्योंकि एरर ऑलवेज बी एडेड। सो रेडी, वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस इट। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। जी स्टूडेंट, इन पावर रूल में मैंने बताया आपको, उसको वापस देख लें। एक्स इज इक्वल टू, वापस देख लें, एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन बी की पावर एम, और कुछ पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं जैसे सी की पावर, ठीक है, के यू कैन से, है ना। डिवाइड में आ जाए तो क्या करें, कुछ बच्चों ने अभी पूछा कि सर अगर डिवीजन में आ जाएगा तो क्या करें। इसमें सिंपल है। अब मैंने क्या कहा, आप तो सिंपल देखें, इसको ऊपर ले जाएं, एम सी इज इक्वल टू माइनस के, ओके, डजंट मैटर। या फिर आप ऊपर ले जाने का भी ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर भी मत ले जाएं, ठीक है, सी को नीचे ही रहने दे, सी के, है ना। अब मेरे को तो बात ये करनी है कि ए में एरर कितनी है। ए में एरर कितनी है सर, डेल्टा ए अपॉन ए, फ्रैक्शनल एरर की बात करूँ, मल्टीप्लाई कर दो एन से। सर बी में एरर कितनी है, डेल्टा बी अपॉन बी, पावर कितनी है एम, इतना सा ध्यान रखना है। सी में एरर कितनी है सर, डेल्टा सी अपॉन सी, पावर कितनी है के, बस एरर। यस डी स्टूडेंट, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट, पावर एम होता है तो वो मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन यहाँ डाउनवर्ड है तो बच्चे कह रहे हैं कि क्या करें। तो सिंपल है यार, सी में तो डेल्टा सी अपॉन सी हो गया, पावर है उसका के, और हमने बोला एरर ऑलवेज एडेड, तो इस पर इसका बात ध्यान रखें ज़रूर, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर होगा आपको। और एक और थिंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो ज़रूर ध्यान रखें। सर ये तो चलो ठीक है, आपने बोल दिया कि दिस वन इज कुछ जैसे इन पैरेलल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालते हैं इन पैरेलल, दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय 1/R1 प्लस 1/R2। ध्यान दीजिएगा ना। अब मुझे R1 में 1/R1 है, ये क्या है, 1/R1 है, तो इसका किस तरह से हम फाइंड करते हैं। आप इसको कंसिडर करें कि ये कोई वेरिएबल है y, और ये वेरिएबल है x1, और ये वेरिएबल है x2। इसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट भी क्या बताता है, चेंज बताता है। एरर भी क्या है, चेंज है, ठीक है, वो डेरिवेशन का पार्ट होता है इसका। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ सर y है, 1/y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1/y। सर ये होता है माइनस में 1/y²। अब आपने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंस किया, y के रेस्पेक्ट में, तो यू विल राइट dy, गॉट द पॉइंट। ऐसे सिमिलरली 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/x², सो इट विल बी x1²। आपने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंस किया सर, dx1 के रेस्पेक्ट में, ओके, गॉट द पॉइंट। ऐसे अगर हम बात करें, इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग इंडिविजुअल, ठीक है। x2 की बात करूँगा तो ये हो जाएगा x2² माइनस में, एंड इट विल बी dx2, गॉट द पॉइंट। सो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा dy/y², dx1/x1² एंड dx2/x2²। देख पा रहे हैं बच्चों, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से इसकी एरर फाइंड की जाएगी। यानी इसको मैंने वेरिएबल कंसिडर किया और डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने का मीनिंग जो है चेंज फाइंड करना। डी मीन्स स्मॉल चेंज, स्मॉल एरर। तो मैं बड़ी एरर की बात करूँ, फ्रैक्शनल एरर की बात करूँ, तो सो यू कैन से सर डेल्टा y/y² इज इक्वल टू डेल्टा x1/x1² प्लस डेल्टा x2/x2²। कैन आई राइट लाइक दिस। अब आपने y किसको रिप्रेजेंट किया है सर, y आपने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा rp को, तो ये हो गया rp²। यहाँ लिखेंगे आप डेल्टा r1/r1², यहाँ आप राइट करेंगे डेल्टा r2/r2²। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। अगर ऐसा कुछ कहीं आता है हम वेरिएबल को देखेंगे, ठीक है, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया, सिंपल चेंजेज आ गए, फ्रैक्शनल एरर आ गई स्मॉल, तो फ्रैक्शनल एरर हम लार्ज स्केल पे बात कर सकते हैं सिमिलरिटी से। dy को हमने डेल्टा y से रिप्लेस कर दिया, गॉट डाउन, dx को हमने डेल्टा x से रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो याद रखिएगा ज़रूर, याद नहीं रखे तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखें, ओके। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ठीक है, कुछ ऐसा भी होता है कि सरफेस एरिया दे रखा है 4πr², ये आपको सरफेस एरिया दे रखा है गिवन, है ना, ये सरफेस एरिया दे रखा है। अब इसमें एरर फाइंड करो, एरिया में क्या एरर होगी, ठीक है। तो एरिया में आपको क्या फाइंड करना है, एरिया में से एरर। सो आपको पता है इसमें तो डेल्टा s/s होगी, फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होगी, डेल्टा r/r, एम राइट, यही होगा डेल्टा r/r। अच्छा, ये पावर में है सर, पावर तो आगे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। व्हाट्स अबाउट द 4π एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें चेंज करोगे, क्या चेंज, क्या एरर, तो
हमें वेरिएबल्स में एरर देखनी है। यहाँ आर रेडियस एक वेरिएबल है, एस सरफेस एरिया एक वेरिएबल है, 4 पाई की कोई वैल्यू चेंज नहीं होनी। आर आप 1 मीटर लोगे तो भी 4 पाई रहेगा, आर इज इक्वल टू 2 मीटर लोगे तो भी ये क्या रहेगा 4 पाई रहेगा। बट R1 चेंज करोगे, R2 चेंज करोगे तो यहाँ S1 S2 आपको मिलेगा अलग। सो दैट्स वाई S और R इज वेरिएबल, तो उन्हीं में ही एरर आने के चांस रहेंगे। 4 पाई तो चेंज ही नहीं हो रहा S और R के अकॉर्डिंग, डजंट मैटर है ना, 4 पाई का कोई डजंट मैटर नहीं है। ठीक है, समझे नहीं समझे ये बताया, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। तो आपको बस इसमें एरर देखनी है, फ्रैक्शनल डेल्टा आर अपॉन आर, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कोई एरर नहीं देखे जाती। सो रेडी है न्यूमेरिकल के लिए, आई होप, वेरी गुड। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। Yes, dear student, we have a question. Time period for a simple pendulum is given by 2 pi root में L by G. L लेंथ हो गया पेंडुलम का, ठीक है। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 2 pi ये कांस्टेंट है, T टाइम पीरियड है। You are given सर परसेंटेज एरर, you have percentage error in L length and G 2% and 4% respectively. Okay, 2% and 4% respectively you can say. देख पा रहे हैं, ठीक है, 2% 4% respectively। नजर आ रहा है बच्चों, नजर आ रहा है? Okay, 2% and 4% respectively. Then find that of the error in time period. टाइम पीरियड में वो एरर फाइंड करनी है। सर आपने में बताया, देखो ध्यान दो, T इजिकल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई L की पावर हाफ G की पावर हाफ, एम राइट? हम लिख सकते नहीं सकते, स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है पावर में हाफ। ओके, नाउ इंडिविजुअल टॉक करते हैं। सर डेल्टा टी अपॉन टी आपको फाइंड करना है परसेंटेज में इंटू 100, गॉट द पॉइंट, ये आपको फाइंड करना है। एंड 2 पाई कॉन्स्टेंट मैं पहले बता चुका हूँ, 2 पाई का कोई एरर कंसिडर नहीं। एल का एरर क्या होगा सर, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, ठीक है, ये हो गया। पावर कितनी है, हाफ, तो उसको क्या कर देंगे, आगे मल्टीप्लाई करें। परसेंटेज एरर इन एल हमने यहाँ लिख दिया, प्लस पावर कितनी है, हाफ, परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन जी कितना आ जाएगा, इंटू 100, गॉट द पॉइंट। दिस इज द परसेंटेज एरर इन जी, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, परसेंटेज एरर इन एल, एंड पावर दोनों की हाफ हाफ है, तो हमने क्या किया, पावर को मल्टीप्लाई किया आगे, और एरर हमेशा ऐड होती है तो हमने ऐड कर दिया, सिंपल है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल, 2% दे रखा है, ये कितना आ जाएगा 4, सो 4 यहाँ से आ जाएगा 1 2 3, 1 + 2 3%, 3% आपके पास में क्या आ गया, आंसर आ गया इन टाइम पीरियड। बहुत सिंपल है ना, बहुत ईजी है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। We have another question. The radius of a sphere is measured to be 2.1 ± 0.5 centimeter. This is the mean true value you can say of the radius, and this is the absolute error in radius. Okay, calculate surface area and with error limits. Okay, with error limits आपको find करना है। So what is the formula of surface area for sphere? Tell me. पहले ट्राई करें है ना, आप ट्राई करें then match. Have you tried? Okay. Now S is equal to 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, क्या बताएं सर, कैलकुलेट कर लो। 4 पाई आर कितना है, ये मीन वैल्यू लेनी है आपको, ठीक है, ट्रू वैल्यू लेनी है। यहाँ से सोल्व करते हैं, इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा, ये हो जाएगा 8.4 पाई, 8.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। फर्दर आप इसको सोल्व करेंगे तो जैसे 4 पाई आर स्क्वायर है, इसको 8.4, तो अगेन इसको 2.1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट विल बी 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको ये मिल जाएगा। ओके डन। देन सरफेस एरिया आ चुका है, एंड दिस सरफेस एरिया इज द मेन वैल्यू। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, दिस इज द मेन, यू कैन से ट्रू वैल्यू 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज द डेल्टा एस, क्या एरर आएगा, रिलेटिव एरर की बात करें, डेल्टा एस अपॉन एस मीन क्या आ जाएगा, 4 पाई का कोई एरर होगा, नहीं होगा। आर स्क्वायर का सर डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई 2, वेरी गुड। सो डियर स्टूडेंट फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड डेल्टा एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर, मल्टीप्लाई कीजिए इसके मीन वैल्यू से,
क्या आ जाएगा सर 2। व्हाट इज डेल्टा आर अपॉन आर? सर डेल्टा आर दिस वन, ये डेल्टा आर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, एंड आर दिस इज द आर। सो फ्रॉम योर 0.5 डिवाइड बाई 2.1 इंटू ऐसा हमने फाइंड कर लिया है मीन 5.4। अब इसको मल्टीप्लाई करें और आपको ये एरर मिल जाएगा डेल्टा एस। तो कितना आ गया यहाँ से आप when you solve it you will find 26.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख पा रहे हैं? ठीक है, डेल्टा एस। अब इसको जब आप सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख पा रहे हैं बच्चों? इट विल बी 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास में एरिया आ जाएगा। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए? अच्छा, ये तो डेल्टा एस आया है, यहाँ से डेल्टा एस अपॉन एस हम भी आप रिलेटिव एरर भी फाइंड कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? सो किस तरह से सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे? नाउ रिप्रेजेंटेशन देखें। सरफेस एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एस इज इक्वल टू, देख पा रहे हैं बच्चों, एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया, चलो यहाँ से जान दे, एस इज इक्वल टू एस एम प्लस माइनस डेल्टा एस। एस एम कितना आया है 55.4 प्लस माइनस डेल्टा एस कितना है 26.4 एंड यूनिट लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर सरफेस एरिया विथ एरर लिमिट मीन एब्सोल्यूट एरर। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोला जाता कि सर रिलेटिव एरर फाइंड करें, सो रिलेटिव एरर के लिए डेल्टा अपॉन एस हम फाइंड कर लेते वहाँ से। गॉट द पॉइंट? फिर उसको रिलेटिव एरर में एक्सप्रेस कर देते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बी एक्टिव, बी अटेंटिव। ऑल द बेस्ट।